الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے۔ آپ لوگ بھی مل کے بیٹھ جاؤ تو ایک آدمی۔ یہ ماہ سیام برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے وسیع خزانوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اللہ کی رحمت اس مہینے میں بہانہ تلاشتی ہے کہ بندہ مومن کوئی نیک عمل کرے اور اللہ رب العزت اس کا بہترین صلہ اس کو عطا فرمائے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی روزہ دار کو صرف افطار کرا دے، افطار سے مراد بھر پیٹ کھانا کھلانا نہیں، افطار سے مراد بہت ساری دیگیں کھلانا یا بہت سارے قورمے کھلانا یا بہت سارے شربت پلانا نہیں۔ افطار سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک کھجور پر بھی کسی کو افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ایک روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ایسی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے کہ جس میں نہ جانے کتنے لاکھوں اربوں خربوں لاتعداد لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ اور یہ جمعہ اور شب جمعہ تو بڑی فضیلت رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کی ہر آن میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے، اور ہر روز افطار کے وقت میں اللہ رب العزت لاکھوں کے حساب سے گنہگار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ماہ سیام چل رہا ہے کہ میدان محشر جب برپا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جن لوگوں کو جنت کا پروانہ ملے گا، توجہ ہے نا حضرات کی، کہو سبحان اللہ۔ جن لوگوں کو جنت کا پروانہ ملے گا وہ جنت کا پروانہ لے کر جنت کا سفر کریں گے۔ سفر سے مراد پل صراط کو پار کریں گے۔ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ جو جہنمی ہوگا تو پل سے وہ نیچے گر جائے گا، کیونکہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کوئی اس پر بجلی کی مانند گزر کر چلا جائے گا، کوئی اس پر گھوڑے کی رفتار کے مانند گزر کر چلا جائے گا، کوئی اپنی چال پر چلا جائے گا، کوئی گھسیٹتا ہوا چلا جائے گا۔ جو جنتی ہوگا اس کو پار کر لے گا، اور جو جنتی نہیں ہوگا اس سے کٹ کر کے جہنم کی آگ میں گر جائے گا۔ جو جنتی ہوں گے پل صراط کو پار کر لیں گے، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک جماعت جنت کے دروازے پر پہلے سے موجود ہے۔ تو جنتی ان سے کہیں گے ہم جب آئے پل صراط سے سفر طے کر کے تو راستے میں ہم نے تمہیں کہیں نہیں پایا، ہم نے اور دوسرے لوگوں کو دیکھا پر تمہیں نہیں دیکھا، تم اتنی جلدی کیسے جنت کے دروازے پر پہنچ گئے؟ وہ کہیں گے جانتے ہو ہم کون لوگ ہیں؟ ہم دنیا میں دنیا والوں سے چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھپا کر پل صراط سے گزرنے والوں سے، جو پل صراط سے گزر رہے تھے ان سب سے چھپا کر سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچا دیا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک جماعت پہلے ہی جنت کے دروازے پر پہنچ چکی ہے۔ اور روزہ داروں کے لیے اللہ رب العزت کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، فرشتوں کو فرمائے گا اے فرشتوں جنت کے سارے دروازے کھول دو، یہ وہ بندے ہیں میرے کہ جنہوں نے میری رضا کے لیے رات کو قیام بھی کیا اور دن میں روزہ رکھا،
तो इनके लिए मेरी तरफ से इनाम है कि जन्नत के जिस चाहे दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाए। ये अल्लाह की जानिब से इनाम है। लेकिन बहुत सारे भाई अभी भी रोजा नहीं रख रहे हैं, बहुत सारे भाई अभी भी सरकशी कर रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमारे बारे में पता ही नहीं कि हम रोजे से है कि नहीं। वो रोजादारों की तरह शक्ल तो बना लेते हैं लेकिन रोजा नहीं रख रहे हैं, रोजे से नहीं रह रहे हैं। अगर जगह की तंगी हो रही हो तो इंतजामिया देखें, क्योंकि रमजान बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी रोजा रखना शुरू भी नहीं किया। कुछ तो ऐसे हैं 50-60 साल उम्र भी हो गई और पूरी जिंदगी में आज तक पूरे माह मुबारक के रोजे ही नहीं रखे। बहुत सारे भाई ऐसे हैं, कभी 4 जुमा का रख लिए पूरे महीने में, कभी ज्यादा रखा तो चांद रात से पहले का जो रोजा होता है वो रख लिया, या किसी दिन महीने में इफ्तार कराना था उस दिन का रख लिया, और समझते हैं हमने तो पहाड़ खसा लिया। पूरे महीने के रोजे अल्लाह ने तुम पर फर्ज फरमाए, अय्याम महदूदात, ये गिनती के दिन अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाए हैं। तो फिर ये सिर्फ 4 जुमा का रोजा नहीं है, पूरे महीने का रोजा है। चांद देखकर ये महीना शुरू होता है और चांद देखकर ही खत्म होता है। तो तुम्हें कहां से ये रास्ता मिल गया कि सिर्फ जुमा का रोजा रख लो? अगर तुमने नहीं रखे हैं तो तौबा कर लो कि आइंदा हम रोजे नहीं छोड़ेंगे, और जो छोड़ दिए हैं उनकी कज़ा और कफ़ारा अदा करो, उनकी कज़ा और कफ़ारा अदा करो, और तौबा कर लो सच्ची कि आइंदा मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। बहुत रोजे छोड़े हैं लोगों ने, जिंदगियां गुजर गई और रोजा नहीं रखा, पछताएंगे कयामत के दिन के काश हम भी रोजा रख लिए होते। जानते हैं मरने के बाद जब नेकियों की कमी पड़ेगी ना, तो बंदे यूं भी कहेंगे मौला हमें दोबारा दुनिया की जिंदगी दे दे तो पूरी जिंदगी में रोजे से रहूंगा। ये तक आरज़ू है लोग करेंगे। इस महीने की फजीलत जानते नहीं है लोग, इसलिए रोजे छोड़ रहे हैं। बहुत सारे बदबख्त तो ऐसे हैं कि इस मुबारक महीने में भी, कि जिस महीने में बंदाए मोमिन अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखता है, इस मुबारक महीने में भी शराब नोशी कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, मक्कारियां कर रहे हैं, धोखेबाजियां कर रहे हैं। जानते नहीं है कि इस महीने में जहां नेकी का सवाब बढ़ जाता है, नेकियां बढ़ जाती हैं, एक नेकी के बदले 70 नेकियां या 700 नेकियां हो जाती हैं, तो वहां गुनाह भी बढ़ जाते हैं। ये शराब नोशी में मुलव्विस ना रहो वरना पछताओगे। बहुत तौबा कर लो। आओ मैं तौबा का वाकया सुनाऊं आपको, तवज्जो है आप हजरात की, समझ में आ रही है ना आप लोगों के? कहें सुभान अल्लाह, ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। रमजानुल मुबारक का महीना और जुमा का दिन है, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो 70 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। कहो सुभान अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार वलियों की फहरिस्त में इनका बड़ा मकाम है, और हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के जाहिरी जमाने से भी पहले के हैं, हुजूर गरीब नवाज के जाहिरी जमाने से भी पहले के हैं। इन्होंने तौबा नहीं की थी। मैं आपको बताऊं तौबा का क्या मामला है। जब तक ये तौबा नहीं किए थे, ये सरकारी मुलाजिम थे, एक बादशाह के यहां नौकरी करते थे और सिपाही थे, पुलिस का काम था इनका, अच्छी खासी आमदनी थी, खूब माल था इनके पास, और माल की कसरत होने की वजह से ये अय्याश हो गए थे, शराब नोशी करते थे। न माहे रमजान का इनको ख्याल होता था, न शबे बारात का ख्याल होता था, न माहे मुहर्रम का ख्याल होता था, न जिलहिज्जा का ख्याल होता था, किसी चीज का एहतराम नहीं करते थे। शराब नोशी में इनकी जिंदगी गुजरती थी। सरकारी मुलाजिम थे, खूब शराब पीते थे। और फिर एक दिन, क्योंकि सरकारी मुलाजिम थे, बासानी इनकी शादी हो गई। दौरे हाजिर में भी अगर नौकरी अच्छी ही हो तो शादी हो जाती है, शक्ल सूरत चाहे जैसी हो या अमल चाहे जैसे हो। जब शादी हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें एक खूबसूरत बच्ची अता फरमाई। तवज्जो है आप हजरात की? तवज्जो है? देखें मस्जिद में सोए नहीं तो आपका वुजू टूट जाएगा अगर बेकाबू हो गया आपका जिस्म। तो मेरी नजर सब पे रहती है ना, तो मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूं, पर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला।
इनकी जब शादी हुई तो अल्लाह ने एक बच्ची अता फरमाई, खूबसूरत बेटी अता फरमाई। लेकिन ये शराब नोशी से फिर भी बाज नहीं आए, खूब पीते थे। सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को नींद नहीं आती थी जब तक शराब का जाम नहीं पी लेते थे। और धीरे धीरे जब इनकी बच्ची बड़ी होने लगी और तकरीबन 2 साल के आसपास पहुंची तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का कमाल ये था कि जब ये बच्ची को गोद में ले लेते थे तब भी शराब पीते थे, लेकिन इनकी बच्ची जो अभी 2 साल की भी नहीं थी, इनका जो शराब का जाम हाथ में होता था, कभी सीधे हाथ में शराब का जाम होता और बाएं हाथ पर लड़की होती, कभी सीधे हाथ पर लड़की होती और बाएं हाथ पर शराब का जाम होता। तो इनकी बच्ची जो अभी 2 साल की भी नहीं थी, वो हाथ मार कर इनकी शराब के बोतल को, इनके शराब के जाम को उलट दिया करती थी। ये बड़े परेशान रहते थे कि इस बच्ची को हो क्या गया है कि इतनी छोटी सी और शराब से इतनी नफरत, जबकि इसको तो मालूम भी नहीं कि ये पीना जायज है क्या नहीं है, इसका पीना दुरुस्त है क्या नहीं है। ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरा। एक दिन आया कि इनकी बच्ची का इंतकाल हो गया, छोटी सी बच्ची है, इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया ये बड़े परेशान हुए, बड़े मायूस हुए, गमगीन हुए कि मेरी छोटी सी बच्ची का इंतकाल हो गया जिससे मेरा दिल लगता था। बच्ची का इंतकाल हो गया, लेकिन इन्होंने शराब नोशी नहीं छोड़ी, बाज नहीं आए। एक दिन शबे बारात की रात थी और उस दिन भी इन्होंने शराब खूब पी और रात को भी शराब पी करके आए और इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी और आकर शराब के नशे में धुत थे कि बिस्तर पर गिर गए और फिर इन्हें नींद आ गई। जब नींद आई तो इन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब क्या देखा कि कयामत का दिन बर्पा हो गया, मीजान लगा हुआ है, अमल तोलने वाला तराजू लगा हुआ है, लोगों का हिसाब और किताब हो रहा है, नेकियां और बुराइयां तोली जा रही हैं, ख्वाब देख रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार अभी तौबा नहीं की है, शराब नोशी करते थे, शराब के नशे में बिस्तर पर हैं, नींद आ गई, ख्वाब देख रहे हैं, कयामत का दिन है, हिसाब और किताब हो रहा है। अचानक इन्होंने ख्वाब में ही एक धमाके की आवाज सुनी। जब आवाज सुनी तो ये अपनी कब्र से उठे ख्वाब में, और कब्र से जब उठे तो इन्होंने देखा कि एक बड़ा असदा, एक बड़े मुंह का सांप इनके पीछे खड़ा हुआ है और इनकी तरफ को आ रहा है। जब इन्होंने भयानक सूरत वाले उस असदे को आता हुआ देखा तो दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए। उसी रास्ते में इन्हें एक बुजुर्ग मिले जो ज़ईफ थे, काफी कमजोर जिस्म के थे, खूबसूरत थे, हसीन और जमील थे। उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे, ऐ बुजुर्ग, आप खूबसूरत और हसीन और जमील हो, नेक इंसान लगते हो। एक धमाके की आवाज मैंने सुनी और कब्र मेरी शाख हो गई। मैं कब्र से निकलकर दौड़ रहा हूं, वो असदा मेरा पीछा कर रहा है। मुझे कोई तरकीब बताइए कि मैं उससे बच जाऊं। वो बुजुर्ग कहते हैं, मैं तुम्हें तरकीब तो नहीं बता सकता, ना उससे छुटकारा दिला सकता, रास्ता बता सकता हूं कि तुम इस तरफ दौड़ो तो शायद उससे बच जाओगे। उन्होंने रास्ता बता दिया। ये दौड़ते चले गए, ख्वाब में दौड़ते चले गए। दौड़ते दौड़ते इन्होंने देखा कि आगे आग के पहाड़ आने लग गए, शोला उठ रहा है, आग के अंबारों के पहाड़ बने हुए हैं और इनको ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं उस आग के पहाड़ों में घुसने ही वाला हूं, गिरने ही वाला हूं, आग के चपेट में आने ही वाला हूं। उधर वो असदा इनका पीछे कर रहा था। ये जब करीब पहुंचने लगे तो फिर इनके लिए हुक्म हुआ, किसी ने आवाज दी कि नहीं, इसको आग के अंदर ना जाने दो, ये जन्नती इंसान है, इसके दूसरे रास्ते पर डाल दो। इन्हें दूसरे रास्ते पर डाल दिया गया। जब ये दूसरे रास्ते पर चले तो इन्होंने देखा कि आगे एक चांदी का पहाड़ है। समझ आ रही है ना आप लोगों को? कहो सुभान अल्लाह। चांदी का पहाड़ है। जब ये करीब पहुंचे तो इन्होंने फरिश्तों को देखा। उस चांदी के पहाड़ में महल बना हुआ है, नीचे की जानिब पहाड़ में उसकी खो में खूबसूरत घर बना हुआ है, उसमें पर्दे लटके हुए हैं। फरिश्तों ने पर्दों को उठाया और कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, ये मोमिनों की अमानतों की जगह है। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए हैं और नेक अमल करते हैं
उनकी अमानतों को यहां महफूज रखा जाता है। इस पहाड़ के अंदर जो चांदी का तुम देख रहे हो, इस महल के अंदर मोमिनों की अमानतें हैं। हजरत मालिक बिन दीनार से कहा गया तुम भी दाखिल हो जाओ, शायद तुम्हारी भी कोई अमानत हो। उधर वो सांप, वो अजदा बिल्कुल करीब था। ये घबरा करके उस महल के अंदर जो चांदी के पहाड़ के अंदर था दाखिल हो गए। जब ये दाखिल हुए तो इन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे उसके अंदर मौजूद हैं, हसीनो जमील बच्चे मौजूद हैं, खूबसूरत बच्चे मौजूद हैं और झूला झूल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं बच्चों तुम कौन लोग हो? बड़े खूबसूरत हो, बड़ा हसीन मंजर है, खुशबुएं आ रही हैं, बेहतरीन हवाएं आ रही हैं। मैंने तो दुनिया में ऐसी हवाएं महसूस न की, ऐसी खुशबुएं महसूस न की। तुम कौन लोग हो और इस चांदी के पहाड़ के अंदर क्या कर रहे हो? तवज्जो है ना आप हजरात की? वो बच्चे कहते हैं मालिक बिन दीनार हम मोमिनों की औलादें हैं और वो औलादें हैं जो हुदूद बुलूगियत से पहले, बालिग होने से पहले दुनिया में इंतकाल कर गए। कौन औलादें हैं? अरे नहीं हो पाएगी ना, तो फिर बिल्कुल खामोश रहो ना, इशारे से भी तो बात हो सकती है। हजरत मालिक बिन दीनार से वो बच्चे कहने लगे मालिक बिन दीनार हम उन मोमिनों की औलादें हैं क्या बालिग नहीं हुए थे और इंतकाल हो गया। हम वो बच्चे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस महल में रखा है, हम यहां आराम से रहते हैं, आराम की हर चीज हमको यहां मुहैया करा दी गई है, हम झूला झूल रहे हैं, हम मोमिनों की अमानतें यहां मौजूद हैं। तो हजरत मालिक बिन दीनार सोचने लगे मेरी वो बच्ची जो दुनिया में मुझे अल्लाह ने अता फरमाई थी, जिसको मैं गोद में बिठाता था और शराब पीता था तो मेरे शराब के जाम को गिरा दिया करती थी, जरूर वो बच्ची भी यहां मौजूद होगी क्योंकि वो बालिग नहीं हुई थी, 2 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया था, तो जरूर यहां मौजूद होगी। आपने निगाह को चारों जानिब दौड़ाया तो देखा आपकी बच्ची हसीनो जमील खूबसूरत एक सोने के पालने में झूला झूल रही है। सोने के पालने में वो लोग जिनके बच्चे इंतकाल कर जाते हैं ना, उनके लिए खुशखबरी भी है कि वो बच्चे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से उसकी जवारे रहमत में रहते हैं। और मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो बच्चे मोमिनों के हुदूद बुलूगियत से पहले, बालिग होने से पहले, चाहे बेटा हो चाहे बेटी इंतकाल कर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा के पास रखता है। कहां? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी के दादा हैं, जद्दे अमजद है, उनके पास रखता है और बीबी सारा उनकी परवरिश करती है और वो उन बच्चों से उनके असली माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। और वो बच्चे जब मैदान महशर बरपा होगा, कयामत का दिन होगा, हिसाबो किताब होगा, तो रब की बारगाह में वो मुकद्दमा करेंगे मौला हमें जन्नत तो दे रहा है, हम जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हमारे दुनियावी माँ बाप जन्नत में न जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो खुशखबरी है उनके लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, चाहे वो माँ के पेट में ही क्यों ना सही। आया समझ में? पर यहां मसाला ये है कि अगर छोटे छोटे बच्चे आपके इंतकाल कर गए हैं और आपने नाम नहीं रखा था तो आप नाम रख दें उनका, कि इसलिए कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से जब फरमाएगा मेरे बंदों को पुकारो, तो फरिश्ते हर बंदे को उस नाम से पुकारेंगे जो नाम उनके माँ बाप ने दुनिया में उनका रखा होगा। तो जिन्होंने अपने बच्चों का नाम नहीं रखा था वो आज नाम रख दें, और आगे से अगर ऐसा हो तो बच्चे का जरूर नाम रख दें। मैं तो कहूंगा अगर बेटी का इंतकाल हुआ है तो चाहे 1 बेटी हो, चाहे 2 बेटी हो, चाहे 4 बेटी इंतकाल हो गया है तो उसका नाम फातिमा रख दे। क्या रख दे? फातिमा रख दे। और बेटे का इंतकाल हो गया है तो उसका नाम मोहम्मद रख दे। क्या रख दे? मोहम्मद रख दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने अपनी बेटी का नाम मेरी बेटी के नाम पर रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मेरी बेटी के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार की बच्ची आपके करीब आई और गोद में उसी तरह बैठ गई जिस तरह दुनिया में बैठती थी, लेकिन आप कहां देख रहे हैं? ख्वाब में।
और जबकि आपने शराब पी थी, वो बच्ची गोद में बैठ गई, कहने लगी अब्बू आपने बड़े गुनाह किए हैं, अभी आप दुनिया में हैं, आपका इंतकाल नहीं हुआ। ऐ मेरे अब्बू, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो सुनता भी है, वो जानता भी है और वो फरियादों को पूरा भी कर देता है, वो तौबा को कबूल करने वाला है। तौबा कर ले, आपने बड़े गुनाह किए हैं। आपने देखा ना किस तरह जहन्नम की आग जल रही थी, आपने देखा ना किस तरह पहाड़ों से शोले उठ रहे थे, वो जहन्नम की आग थी, आप उसमें ना चले जाना। मेरे अब्बू मैं आपसे इल्तिजा करती हूं, मैं इसलिए आपके शराब के जाम को हाथ से गिरा देती थी, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरे अब्बू जहन्नम में चले जाए और उनकी बेटी जन्नत में चली जाए, मैं ये चाहती हूं आप तौबा कर लें। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी बच्ची से पूछते हैं ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी लखते जिगर, मुझे ये तो बता दे, जब मैं कब्र से उठा था धमाके की आवाज आई थी, मैंने एक सांप देखा था, एक अस्दा देखा था जो मेरा पीछा कर रहा था, भयानक सूरत में था, वो कौन था, कहां से आया था, किसने भेजा था? वो बच्ची कहती है मेरे अब्बू, वो जो आपने दुनिया में बुराइयां की हैं, वो जो आपने शराब पी है, वो जो दुनिया में नमाजें छोड़ी हैं, वो जो कुरान की तिलावत को आपने तर्क किया है, जो मस्जिद में नहीं गए हैं, आपने माह रमजान के रोजे नहीं रखे हैं, वो जो सांप था, वो जो अस्दा था, जो भयानक सूरत वाला था, वो आपका बुरा अमल था जो आपका पीछा कर रहा था। मेरे अब्बू तौबा कर लो, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब्बू तौबा कर लो, अल्लाह आपकी खताओं को दरगुजर फरमा देगा। वो गफूर रहीम है, वो बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे अब्बू तौबा कर लो। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी बच्ची से पूछते हैं ऐ बच्ची ये तो बता, वो सांप मेरा बुरा अमल था, लेकिन रास्ते में एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई थी जो कमजोर थे, ज़ईफ थे, खूबसूरत थे, हसीनो जमीन थे, वो कौन थे? वो बच्ची कहती है मेरे अब्बू, वो आपका नेक अमल था, अपने दुनिया में नेकियां बहुत कम की है, इसलिए वो कमजोर था, वो ज़ईफ था, खूबसूरत था इसलिए क्योंकि वो नेकी थी, लेकिन वो कमजोर है क्योंकि आपने बहुत कम नेकी की है। ऐ मेरे अब्बू आप तौबा कर लें, आप तौबा कर लें तो आपकी नेकियां मजबूत हो जाएंगी और आपका बुरा अमल कमजोर हो जाएगा और अल्लाह पर रहम फरमाएगा, आपको जन्नत अता फरमा देगा। हजरत मालिक बिन दीनार जब ख्वाब से बेदार हुए, दिल की दुनिया बदल गई। ये बच्ची ख्वाब में कैसे आ गई, वो आग के पहाड़ कैसे आ गए, वो अस्दा कैसे आ गया, आप हैरान थे। रब की बारगाह में तौबा करते हैं, मौला आज शबे बरात है, मैंने बड़ी शराब नोशी की है, बड़ी मक्कारी की है, बड़ी नमाजें छोड़ी हैं, माह रमजान का मैंने ख्याल नहीं रखा, उसका एहतराम नहीं किया, उसके रोजे नहीं रखे, मैं आज तौबा करता हूं, मौला तू मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो हजरत मालिक बिन दीनार ने जब तौबा की है तो अल्लाह ने आपकी तौबा को ऐसा कबूल फरमाया है कि उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मकामे विलायत अता फरमा दिया, मकामे विलायत अता फरमा दिया। और ऐसा मकामे विलायत, ऐसा मकामे विलायत क्या आप पूरी जिंदगी में कभी भी उस दिन से लेकर पूरी जिंदगी में कभी भी आपने पूरे साल में जो दिन मना किए गए हैं उन दिनों के अलावा कभी आपने रोजा नहीं छोड़ा? सिर्फ माह रमजान ही नहीं, पूरे साल आप रोजा रखते थे और पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। हाल ये था कि एक दिन आप एक कश्ती में सफर कर रहे थे, कश्ती में सफर कर रहे थे। जब कुछ दूर सफर हो गया, कुछ लोग और भी मौजूद थे, तो एक शख्स की चोरी हो गई और उसका एक कीमती मोती चोरी हो गया कश्ती के अंदर। तवज्जो है ना हजरात की, समझ आ रही है ना मैं जो आपको बता रहा हूं? तौबा का मामला बता रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक रोजे नहीं रखे हैं वो तौबा कर लें कि आगे से नहीं छोड़ेंगे, न तरावी की नमाज छोड़ेंगे, न फर्ज नमाज छोड़ेंगे, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब सांसें रुक जाएं, और सांसें रुक गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि सांसें लौटा दे। हजरत मालिक बिन दीनार कश्ती में सफर कर रहे हैं, एक शख्स का कीमती मोती चोरी हो गया। लोगों ने इल्जाम लगाया ये जो शख्स बैठा है हसीनो जमील खूबसूरत, ये अजनबी है, शायद इसी ने चोरी कर ली। हम तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के मोहब्बत करने वाले हैं, जरूर ये अजनबी है, इसने चोरी कर ली। आप पर इल्जाम लगाया गया कि लाओ वो बेशकीमती मोती कहां है।
जो तुमने चोरी कर लिया है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने चोरी नहीं की, लेकिन लोग बराबर आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं ए लोगों, जब तुमने मुझे चोर साबित कर ही दिया है और माल मुझसे मांग रहे हो तो चलो तुम्हारा माल लौटा देता हूं। आपने दरिया में आवाज लगाई, ए दरिया की मछलियों, मुझे एक मोती चाहिए था, कोई ला करके दे दो। तो कसम खुदा की, दरिया से लाखों की तादाद में मछलियों ने पानी से बाहर मुंह निकाल लिया और हर एक के मुंह में बेशकीमती मोती लगा हुआ था। हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे ए लोगों, तुमने कहा तुम आपस में दोस्त हो और चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। देखो तुम आपस में दोस्त हो, मैं उसका दोस्त हूं जिसने कायनात को पैदा फरमाया है। तुमको जितने मोती चाहिए मछलियों से ले लो। लोगों ने जब देखा कि ये तो कोई वली है, ये तो कोई अल्लाह का दोस्त है, आपके करीब आ गए, आपकी दस्तबोशी करना चाहिए। आप कश्ती से उतर गए और पानी पर चलते हुए बगैर कश्ती के दरिया को पार करके चले गए और फरमाने लगे लोगों, तुम दुनिया वालों के दोस्त बन रहे हो, अल्लाह के दोस्त बन जाओ तो अल्लाह पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में निछावर फरमा देगा। अल्लाह के दोस्त बन जाओ, तौबा कर लो, अभी मौका है। किसने जाना कि अगले साल माह रमजान हमें मैसर होगा कि नहीं? कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? कोई लिख कर दे सकता है कि मुझको अगले साल रमजान का महीना आएगा या आपको आएगा? एक बच्चे की एक दिन की पैदाइश क्यों ना हो, उसकी भी गारंटी नहीं। चाहे 60 साल उम्र हो, चाहे 60 दिन उम्र हो, कोई गारंटी नहीं कि अगले साल ये माह मुबारक हमें नसीब होगा कि नहीं। तो तौबा कर लो मौला, ये माह मुबारक हमको मिल गया है, हम तौबा कर रहे हैं, आइंदा रोजा नहीं छोड़ेंगे। जो लोग शराब नोशी कर रहे हैं इस माह मुबारक में भी बाज आ जाए। याद रखे, कब्र में उनका भयानक उनकी सूरत होगी और कब्र उनको दबाएगी तो उनकी हड्डी पसली सब चूर चूर कर देगी, कोई ना बचाएगा। तुम कैसे लोग हो गए हो कि जिस रब का कलमा पढ़ते हो, जिस पर ईमान लाए हो, जिसको वहदहुल शरीक मानते हो, उसके हुक्म की पामाली करते हो। उसने कहा शराब नहीं पीनी, शराब पीते हो। उसने कहा रोजे रखने हैं, रोजे छोड़ते हो। उसने कहा नमाज पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ते हो। उसने कहा ज़कात दो, ज़कात नहीं देते हो। उसने कहा पड़ोसियों का ख्याल रखो, नहीं रखते हो। उसके महबूब ने कहा मेरी सुन्नतों पर अमल करो, नहीं करते हो। उसके महबूब ने कहा ऐसा लिबास पहनो, नहीं पहनते हो। उसके महबूब ने कहा माँ बाप का ख्याल रखो, नहीं रखते हो। और सोचते हो हमें जन्नत मिल जाएगी। तुम्हारे अब्बा की सरकार नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे हिसाब ले लेगा। ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब मौत आए तो तुम बिस्तर पर पड़े हो और मुस्कुरा रहे हो। दुनिया कह रही हो नबी का गुलाम मुस्कुराता हुआ जा रहा है, और कब्र में पहुंचो तो कब्र में मुस्कुरा रहे हो। मैदान महशर में जब सूरज की तपिश हो तो तुम मुस्कुरा रहे हो। लोग पूछे इस नफसी नफसी में क्यों मुस्कुरा रहा है, तो कहना नबी का गुलाम हो और मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। तौबा कर लो जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की है। मत छोड़ो माहे सियाम के रोजे, तुम इसकी बरकत को नहीं जानते हो। जब मरने के बाद जान लोगे ना तो पछताओगे कि काश फिर से हमें दुनिया की जिंदगी 100 साल नहीं 1000 साल भी मिल जाए तो 1000 साल में 1000 रोजे रखकर मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता। लेकिन फिर पछताने से कुछ नहीं होने वाला। अभी सच्ची तौबा कर लो ताकि अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा ले। और मायूस ना होना, तुमने चाहे जितनी शराब पी हो, चाहे जितने जिना किए हो, चाहे जितनी चोरी की हो, मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। तौबा कर लो, वो तौबा को कबूल फरमा लेगा। उसकी जात से मायूस मत हुआ करो। कितनी बीमारियां हो, कितनी परेशानियां हो, कितनी तंगदस्ती हो, परेशान ना हो। जहां सारे रास्ते बंद हो
जाते हैं, वहां अगर कोई रास्ता दिखा सकता है तो वो मेरे रब की जात है, उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया के करीब पहुंचे बनी इसराइल को लेकर के, तो लोग कहने लगे अब सारे रास्ते बंद हैं, फिरौन अपने लश्कर को लेकर के आ रहा है, कोई रास्ता नहीं किधर से भागे। ए अल्लाह के नबी, आपने हमें यहां लाकर फंसा दिया, अब जरूर हम मारे जाएंगे, कोई रास्ता नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी कौम, जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं मेरा रब वहीं तो रास्ता खोलने पर कादिर है। और जब दरियाए नील में 7 रास्ते बन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते देख लो मेरा रब क्या कर सकता है, दरिया के अंदर रास्ते बना दिए। और जब फिरौन अपने लश्कर को लेकर दाखिल हुआ तो गर्क भी फरमा दिया। और जब लोगों ने कहा फिरौन नहीं मर सकता, वो खुदा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी लाश को दरिया से बाहर निकाल कर लोगों के लिए इबरत भी बना दिया। नहीं मानते तो देख लो नेट पे सर्च करके, आज तक फिरौन की लाश पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी हुई है आज तक। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि हम इसे इबरत का निशान बना रहे हैं कि जो रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेगा, अपनी मर्जी की गुजारेगा, तो फिर उसके लिए ये इबरत है कि वो इबरत हासिल कर ले कि उसका रब मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा और सबसे हर किए का हिसाब ले लेगा। तौबा कर लें सच्ची और रोजे रखें। बहुत सारे भाई घबराते हैं कि तरावी की नमाज 37 रकात है, कैसे पढ़ूंगा, 37 रकात है कैसे पढ़ूंगा। ये बताओ मुझको, जब कोरोना काल आया था तो तकलीफें थी क्या नहीं? तकलीफें थी, खाने पीने की थी, रहने की थी, किराएदारों की थी। तो लोगों ने तकलीफ से बचने के लिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, यहां तक के बंबई तक से लोग बिहार तक पैदल चले गए थे कि नहीं, तकलीफ से बचने के लिए। तो मैदान महशर में जो तकलीफ होगी 50,000 बरस का एक दिन होगा। गर्मी की तपिश का हाल मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो उस तकलीफ से बचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आराम चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आराम सुकून चाहते हो तो रब की रजा के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लिहाजा तौबा कर लो। और जो लोग अभी तक नमाज तरावी में या दीगर नमाजों में नहीं आ रहे हैं, तौबा करके आ जाएं रब की बारगाह में, वो आएंगे तो हमारा फायदा है या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये उनका फायदा है। अगर कोई नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, तो वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता, वो अपना नुकसान कर रहा है। अगर कोई सोचे मैं नमाज पढ़ूंगा तो अब रब का फायदा होगा, नहीं, उसका कोई फायदा नुकसान नहीं होता। वो कादिर मुतलक है, उसको किसी की जरूरत नहीं, किसी का मोहताज नहीं, हम सब उसके मोहताज है। लिहाजा रब की बारगाह में तौबा कर कर सच्चे मुसलमान बन जाओ।